Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Miss Samina with lecture number 8. Inshallah, today we complete our last chapter of the first term, that is computer component. First we recap our previous chapter. In previous chapter we discussed 4 topics of the chapter computer component. First we discussed block diagram of computer setup, in which we discuss how the computer has worked when the user input the data into the computer through the input devices, and CPU process all this data, and CPU after processing transfer this data to the output devices, and output devices are used to display the data. Actually, block diagram of computer setup give you the overview or entire cycle of the computer working. Then we discuss central processing unit and its functional unit. That's our arithmetic logical unit and control unit. Central processing unit is the main unit of the computer where all the processing and all the computer activity has been done. All the data which is feed by through the input devices is discussed is processes in the central processing unit, and there are two functional unit, that is control unit, which is the main working area of the main working or processing area of the computer, and arithmetic and logical unit where all the calculation and logical decision has been done. Third one is the memory storage. It is part of central processing unit, but we discuss it separately because memory unit is the main working area of the computer where all the working has been done, and it has two types, RAM and ROM. Then we discuss input devices and output devices, how input devices take the data from the user and then translate this data into the machine learning. And output devices are those devices which take the data from the CPU, first translate into human readable form, and then display on the monitor and printer. Now we start our today's lecture with the topics of buses and its types, ports and its types, and internal memory and the external memory of the computer. Now we start our today's first topic, that is buses. Student, you all hear the word buses. आप लोगों ने बसेस का लफ्ज़ सुना होगा, बहुत दफ़ा सुना होगा. बसेस जो आप अक्सर आप रोड्स पर देखते हैं, जो मुसाफिर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. तो क्या हम कंप्यूटर कंपोनेंट में उन बसेस का जिक्र कर रहे हैं या उस पर्पस का जिक्र कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए बसेस यूज़ होती हैं? एग्जैक्टली स्टूडेंट, इन कंप्यूटर buses are used to transfer the data from one component of computer to the another component of computer. So first we take the definition. A bus is a set of wires or connection that connects the different components together and through which signals travels. Actually buses एक सेट ऑफ वायर्स होती हैं जो कंप्यूटर के इनसाइड मौजूद होती हैं, और उनका काम क्या है, ये एक तरह के कनेक्शन है एक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से का दूसरे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के साथ, सो दैट डेटा कैन ईजिली ट्रैवल बिटवीन वन कंपोनेंट और मोर देन वन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. जैसे कि बसेस जो हैं, जो हम रोड्स की बसेस का जिक्र करते हैं, उनका काम क्या है, पैसेंजर्स को एक जगह से उठाना और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना, या वहाँ से बीच में बहुत सारी अगर बहुत सारे पैसेंजर्स हैं बसेस में, तो उनकी जहाँ जहाँ मंजिल होगी वो वहाँ वहाँ पर वो ड्रॉप होंगे. सेम लाइक दैट buses perform the same task. They take the data from the one component and send it to their particular component where that data needed. तो इस तरह buses used to take the signals from one component of computer to the another component of computer. We also say that it is the communication path, the bus width determine the speed of data transmission. असल में जो डाटा की विथ होती है, यानी अगर एक डाटा बस के अंदर 4 वायर्स हैं तो वो उसकी विथ के ज़रिए हमें पता चलेगा कितना डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है. 4 वायर्स भी हो सकती हैं, मोर देन 4 वायर्स भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है. तो एक्चुअली बस विथ डिटरमाइन द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन.
जितनी ज़्यादा वायर्स होंगी उतना ज़्यादा डाटा कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र होगा। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेस यूज़ इन द कंप्यूटर? अगर बसेस का काम इतना इम्पोर्टेंट है कि ये कंप्यूटर के तमाम डाटा को, तमाम कुछ सिग्नल्स को कंट्रोल करती हैं या ट्रांसफ़र करती हैं, तो कौन कौन सी बसेस हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं? देयर आर 3 buses used in the computer, that are address bus, control bus and data bus, and all these 3 buses are transfer the data, signals or addresses through CPU, memory, input and output devices. स्टूडेंट, जब मैंने आपको डिस्कस किया था ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सेटअप, तो उसमें मैंने आपको 3 मेन कंपोनेंट बताए थे, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो असल में ये बसेस का जो कनेक्शन है इन तीनों के दरमियान होता है, और ये बसेस सिग्नल्स को, डाटा को और डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस के ज़रिए सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती हैं। नाउ वी डिस्कस फर्स्ट बस ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज़ एड्रेस बस. First, we take the definition of the definition of address bus, that is a collection of wires connecting the CPU with main memory, that is used to identify particular location address in main memory where the data is stored. स्टूडेंट, एड्रेस बस, जैसा कि आपको पता है कि इसका नाम है एड्रेस बस, तो असल में इसका ताल्लुक किस कंप्यूटर के कंपोनेंट से होगा? दैट इज़ मेमोरी यूनिट, क्योंकि जब हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं तो हमारा डाटा कंप्यूटर की मेन मेमोरी मीन रैम के अंदर जाके डाटा स्टोर होता है। जब रैम में जाके डाटा स्टोर होता है तो वहाँ पर वो एक, जब डाटा स्टोर होता है तो उस डाटा का एक एड्रेस बनता है जहाँ पर जाके वो डाटा सेव होता है। तो असल में एड्रेस बस का काम क्या है? ये वहाँ से पर्टिकुलर इट्स आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर लोकेशन वेयर द डाटा हैज़ बीन स्टोर, और जब हम डाटा को रिट्रीव करते हैं तो दैट बस गो दैट पर्टिकुलर लोकेशन एंड identify that data and then retrieve that data which the user required. What's the purpose of the address bus? The first one is connection between the CPU and memory, which transmit the addresses from which the CPU will read or to write. Actually, the address bus are those connection or those buses through which communication has been done between CPU and memory. Why CPU and memory? CPU is the main area where all the processing has been done, and the memory unit is the unit where all the data has been present. Either it's a short period of time or either a long period of time. तो memory unit वो है जहाँ पर data store हो रहा है, और CPU कहाँ है? जहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो बस होगी दैट इज़ एड्रेस बस, एंड दे विल, जब डाटा को स्टोर करना होगा, CPU ट्रांसफर दिस डाटा टू द मेन मेमोरी सो दैट दे कैन स्टोर टू पर्टिकुलर लोकेशन, दैट इज़ एड्रेस। और जब डाटा को रिट्रीव करना होगा तो CPU take the data from that particular location or address and then processing that data. Number 2, the number of bits in the address bus can determine the amount of the memory the CPU can address. So the number of bits in the address bus, जितनी उसमें जितना एड्रेस बिट में डाटा बिट्स ट्रांसफ़र होंगी उतनी ही CPU में जाके वो एड्रेस होंगी, यानी वहाँ पर वो उन्हीं पर्टिकुलर लोकेशन पर मौजूद होंगी और वही बिट्स जो हैं वो प्रोसेसिंग होगी. 36 address lines or the buses can be access 64 GB of main memory. 36 एड्रेस लाइंस हैं, यानी जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है मेन मेमोरी से CPU की तरफ या CPU से मेन मेमोरी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अगर 36 एड्रेसेस लाइंस हैं और या बसेस हैं तो उसका कितना एक्सेस डाटा होगा? 64 GB ऑफ मेन मेमोरी. मेन मेमोरी का कितना डाटा एक्सेस होगा? 64 GB. कब होगा? अगर आपकी एड्रेस बस की लाइंस जो होंगी वो 36 बिट की होंगी. Second bus of the computer, that is control bus. The definition is the control bus is a physical connection that carry control information between CPU
and the other devices within the computer. एक्चुअली कंट्रोल बस जो है वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती है और कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट के साथ इट्स कनेक्टेड. क्यों कनेक्टेड? क्योंकि कंट्रोल यूनिट असल में काम क्या है, उसको कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना. तो अगर उसको तमाम एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर को कंट्रोल करना है तो दे मस्ट बी कनेक्टेड, CPU मस्ट बी कनेक्टेड टू द ऑल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. And without the control bus, the CPU cannot determine whether the system is receiving or sending data. तो कंप्यूटर में असल में डाटा रिसीव हो रहा है कहाँ से? इनपुट डिवाइसेस से. और कौन इसमें डाटा फीड कर रहा है? यूज़र. एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दैट डाटा डिस्प्ले ऑन द आउटपुट डिवाइस. तो वो क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है. CPU सेंड इट टू द आउटपुट डिवाइसेस. सो कंट्रोल बस रिस्पॉन्सिबल टू दैट how much data has been received and how much data has been sending to the output devices. So अगर control bus नहीं है तो CPU cannot determine कि data is receiving or data is sending. The purpose of control bus is that it carries control information between CPU and other devices. कंट्रोल बसेस का काम क्या है? इट्स कैरीज आउट आइदर सेंडिंग और रिसीविंग द कंट्रोल सिग्नल बिटवीन CPU एंड द ऑल द डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, लाइक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट एंड CPU कंट्रोल यूनिट. तो सबके दरमियान आप बीच में कनेक्शन जो है इन सिग्नल्स का, ये कंट्रोल बस कंट्रोल करती है. The control bus carries signal that report the status of various devices. The status of various devices mean the device is working properly or not. So control unit also work on that कि कंप्यूटर की तमाम डिवाइसेस प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. तो द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल बस इज़ ऑल्सो दैट कि ये सिग्नल्स को या कंप्यूटर की वेरियस डिवाइसेस को स्टेटस को भी चेक करती है कि आइदर दे आर वर्क प्रॉपरली और नॉट. It is a control bus that regulates which direction the write and read information need to go. The control bus contain a control line of write for write instruction and a control line to read instruction. जी स्टूडेंट, कंट्रोल बस असल में डायरेक्शन को भी कंट्रोल करती है. यानी अगर डाटा रिसीव हो रहा है और डाटा सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है इट्स मीन इट्स अ रीड इन्फॉर्मेशन, और जब डिस्प्ले हो रहा है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है, राइट इन्फॉर्मेशन. तो असल में इट्स ऑल्सो रेगुलेट ऑल द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल्स, आइदर सिग्नल्स और इंस्ट्रक्शन, दैट इट्स अ रीड इंस्ट्रक्शन और इट्स अ राइट इंस्ट्रक्शन. द लास्ट बस ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज़ डेटा बस. The definition is, it is communication route through which data can travel between the computer's central processing unit, memory and peripheral. Student, as you know that the data is most important for the computer. If we are not feed the data to the computer, computer cannot process it, computer cannot generate the information, computer cannot generate the result. तो असल में जब हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं तो दैट डाटा हैज़ बीन प्रोसेस. तो इसको भी डाटा को भी ट्रांसफ़र करने के लिए वी आर यूजिंग डाटा बस. एक्चुअली इट्स अ कम्युनिकेशन रूट थ्रू विच डाटा कैन ट्रैवल बिटवीन CPU क्यों? क्योंकि जहाँ पर डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है. मेमोरी का क्यों? बिकॉज डाटा के एड्रेसेस, डाटा जो है वो मेमोरी में स्टोर होता है. Peripheral mean input and output devices. So the data bus are most important one because it transfer the data from different component of the computer like CPU, input devices and output devices and memory. What is the purpose of the data bus? It carries the signal that transmit data between different component of the computer. As I told you that data bus is used to transmit the data from different component of the computer. The speed at which data can travel between the hardware component depend on the number of wire in the bus.
किस स्पीड से डाटा ट्रांसमिट होता है, ट्रैवल करता है थ्रू इन दिस बसेस, इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वायर्स इन द बसेस में जितनी वायर्स होंगी उतना ही ज़्यादा डाटा ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। आप इसकी एक एग्जांपल इस तरह भी ले लें कि जैसे बसेस हैं, अगर बसेस में डिफरेंट रूट्स हैं, तो अगर बस ड्राइवर को जिस रूट पर जाना होगा वो उस रूट की तरफ ट्रैवल करेगा। सेम लाइक दैट डाटा बस और बाकी बसेस भी, दे डिपेंड ऑन देयर सिग्नल्स, दे डिपेंड ऑन देयर रूट, जिस रूट पर उसको डाटा ट्रैवल होगा वो उसी रूट पर ट्रैवल करेगा। और कितना ज़्यादा डाटा ट्रैवल करेगा या जितना ज़्यादा डाटा ट्रांसमिट होगा, दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वायर इन द बस। ईच वायर ट्रांसमिट अ सिग्नल बिट एट अ टाइम, सो 8 बिट बस कैन ट्रांसमिट 8 बिट अ टाइम। हर वायर जो है वो एक सिग्नल ट्रांसफ़र करती है। सो अ सिंगल बिट ट्रांसमिट अ सिंगल बिट डाटा। अगर आपकी 8 बिट की बस है तो कितना डाटा ट्रांसमिट होगा, 8 बिट एट अ टाइम। नाउ वी डिस्कस another important component of the computer, that is ports. Ports is a socket at the back of the computer used to connect or plug in various devices. स्टूडेंट, आपके घर में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मौजूद होती हैं। आप उसको जब रन करते हैं या उसको चलाते हैं तो यू नीड अ सॉकेट, जिसके अंदर उसके के वायर को या उसके प्लग को आप प्लग इन करते हैं और वो डिवाइस वो जो है वो रन करती है। सेम लाइक डैट कंप्यूटर के अंदर भी सॉकेट्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर हम वायर्स को केबल्स को प्लग इन करते हैं और हमारी कंप्यूटर्स प्रोसेस करता है। सो अ पोर्ट इज़ अ सॉकेट। सॉकेट कहाँ है, एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर, यूज टू प्लग इन। हम देखते हैं जब हम कंप्यूटर का मॉनिटर है, कीबोर्ड है या सीपीयू है या इन सब चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो सीपीयू में हम क्या करते हैं, पहले वो केबल्स को प्लग इन करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ पोर्ट। आपके पीसी में आपको बहुत डिफरेंट पोर्ट्स आपको दिखाएंगे। जैसे मैंने यहाँ एक पिक्चर भी ली है जिसमें पोर्ट्स के नाम है कि कौन सी PS2 पोर्ट है जो माउस के लिए यूज़ होती है। PS2 पोर्ट्स जो है वो कीबोर्ड के लिए भी यूज़ होती है, यानी आप कीबोर्ड और माउस की सेम पोर्ट आप चेंज भी करके लगा सकते हैं। इसी तरह कुछ पैरेलल पोर्ट है, VGA पोर्ट है, USB पोर्ट है। तो डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर जिसमें हम उनको प्लग इन करते हैं सो दैट पर्टिकुलर component of computer can work properly. Internally, there are several ports for connecting disk drive, display controller and optical drive and keyboard. देखें, कुछ आपको पोर्ट्स जो हैं डेट शो आउटसाइड द कंप्यूटर, जैसे आपके कंप्यूटर के बैक पर होते हैं, कुछ इंटरनली होते हैं। इंटरनली कनेक्शन जो होते हैं डेट उसको भी हम पोर्ट्स कहेंगे। एक्सटर्नली पर्सनल कंप्यूटर हैज़ पोर्ट फॉर कनेक्टिंग मोडेम, प्रिंटर, स्कैनर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस। जो इंटरनली डिवाइस होती हैं कंप्यूटर की मदरबोर्ड में या कंप्यूटर के इनसाइड में, जैसे कि आपके पास डिस्क ड्राइव है या डिस्प्ले कंट्रोल है जिस कंट्रोल करने के लिए है, या डिफरेंट VGA कार्ड स्लॉट्स हैं, तो ये इंटरनली होती हैं। लेकिन एक्सटर्नली क्या है, आपने अगर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच करना है, स्कैनर अटैच करना है, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच करनी है, देन यू यूज़ द प्लग इन फ्रॉम आउटसाइड द कंप्यूटर, दैट्स आर एक्सटर्नल पोर्ट्स, जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं कंप्यूटर के साथ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, दैट्स आर सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट। अगर आप पोर्ट्स देखें, कंप्यूटर के सॉकेट्स देखें, तो उसमें डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो इतने पोर्ट्स, हमें पोर्ट्स की डिफरेंट शेप्स आपको शो हो रही है, तो वो किस किस्म का, वो किस तरह का डाटा जो है वो ट्रांसमिट करती हैं। द फर्स्ट पोर्ट इज़ अ सीरियल पोर्ट. The definition is a port or interface that can be used for serial communication in which only one bit is transmitted at a time is called serial port. Serial port is a port जिसके अंदर एक वक्त में एक डेटा ट्रांसमिट होता है, यानी एक कम्युनिकेशन एक बिट ट्रांसमिट हो रही है, एक से ज़्यादा नहीं हो रही।
तो अगर एक बिट ट्रांसमिट हो रही है और वो पर्टिकुलर डिवाइस एक वक्त में एक डाटा ट्रांसमिट कर रही है या एक डाटा यूज़ कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड सीरियल पोर्ट। यानी वो डिवाइसेस जिसमें एक वक्त में एक डाटा या एक बिट ट्रांसमिट होगी, तो उसके लिए हम जो डिवाइसेस यूज़ करेंगे दैट इज़ जो पोर्ट्स यूज़ करेंगे दैट इज़ सीरियल पोर्ट। A serial port is also called a male connector has 9 और 25 पिन। सीरियल पोर्ट की एक पहचान क्या होती है कि इसमें पिंस मौजूद होती हैं। देखें, जब अगर आप कोई पोर्ट देखें या कोई प्लग देखें जिसके अंदर पिंस हैं, तो डैट इज़ सीरियल पोर्ट। और उस सीरियल पोर्ट होगी तो वो कितना डाटा ट्रांसमिट करेगी, 1 बिट एट अ टाइम। और उसको सीरियल पोर्ट को हम मेल कनेक्टर भी कहते हैं। Serial port, why we use these serial port? A serial port is a general purpose interface that can be used for almost any type of device including modem, mice and printer। देखिए कहाँ पर हम इसको कौन से डिवाइसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो हम सीरियल पोर्ट एक्चुअली यूज़ फॉर द मोडेम, जिसमें सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, एक वक्त में एक डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, एक बिट ट्रांसमिट हो रही है। या प्रिंटर है जिसमें हम एक साथ बहुत सारे टास्क भी दे दें तो वो एक वक्त में एक पेज को प्रिंट करेगा, एक साथ बहुत सारे पेज प्रिंट नहीं करेगा। तो एक वक्त में एक टास्क परफॉर्म हुआ, क्या हुआ, एक पेज प्रिंट हुआ, देन सेकेंड पेज। तो इस तरह सीरियल पोर्ट के साथ सीरियल पोर्ट आर यूज फॉर दैट डिवाइसेस थ्रू विच ओनली वन टास्क कैन बी परफॉर्म और वन डाटा कैन बी ट्रांसमिट। द सेकेंड वन इज़ अ पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट मीन मोर देन 1 बिट ट्रांसमिट होगी, क्योंकि पैरेलल है, एक चीज़ एक के साथ 2 या 3 भी हो सकती हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? अ सॉकेट ऑन अ कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा इन पैरेलल। यानी पैरेलल एक साथ बहुत सारा डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, विच मीन्स मोर देन 1 बिट एट अ टाइम इज़ कॉल्ड पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में एक वक्त में एक से ज़्यादा ट्रांसमिट हो सकता है डाटा। जैसे कि आप डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे मैंने इसमें पिक्चर में शो किया है, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, 0, D0। तो ये डाटा जब ट्रांसमिट हो रहा है, ये एक साथ ट्रांसमिट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले एक डाटा ट्रांसमिट होगा फिर दूसरा डाटा ट्रांसमिट होगा, नहीं, एक साथ पूरी ये 8 बिट जो है वो 8 बिट ट्रांसमिट हो रही है। There may be 6, 16 or 34 channel wire. Each channel carries 1 bit of information. So 8 channel would be used to transmit 8 bits at a time. Remember, अगर आपके वायर जो है उसमें 8 चैनल्स हैं, तो इसका मतलब है एक चैनल एक बिट ट्रांसमिट करी। तो पैरेलल पोर्ट्स में अगर आपकी 8 वायर्स हैं तो एट अ टाइम 8 बिट ट्रांसमिट एट अ टाइम। और अगर आपकी वहाँ 16 चैनल बिट है, वायर है, तो इसका मतलब है कि कितना डाटा ट्रांसमिट होगा, 16 बिट। तो इस तरह जितने चैनल्स होंगे उतने ही डाटा जो है वो ट्रांसमिट होगा। A parallel port, also called female connector, has 25 holes and cable that plug into it has a pin. In a serial port पहचान कैसी, उनमें पिंस थे, बट पैरेलल पोर्ट क्या है, उसमें होल्स होते हैं। वहाँ 9 to 25 पिंस होती हैं, यहाँ कितने हैं, 25 होल्स होंगे। और उसके अंदर जो प्लग इन हम प्लग करेंगे उसके अंदर क्या होगी, पिंस होगी। दैट पिंस फिट इनटू द होल्स। तो पैरेलल पोर्ट हैज़ अ होल्स एंड द सीरियल पोर्ट हैज़ अ पिंस, ठीक है। And serial port called the male connector and the parallel port called the female connector. Okay, why we use parallel ports or where we use parallel port? Some channels are used for data and some are used for control signal. कुछ डिवाइसेस जो हैं वो डाटा के लिए यूज़ होती हैं, कुछ पैरेलल पोर्ट्स आर यूज टू ट्रांसमिट द डाटा एंड द सम पैरेलल पोर्ट आर यूज टू ट्रांसमिट द सिग्नल. It is the port used to connect ROMs, extra hard disk and most of the printers. ROMs में, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क में या प्रिंटर्स के लिए हम बाद में पैरेलल पोर्ट्स भी यूज़ करते हैं.
Now we discuss very important unit of the computer or very important component of the computer, that is internal and external memory of the computer. स्टूडेंट वी ऑलरेडी डिस्कस मेमोरी यूनिट इन द सीपीयू. जब हमने सीपीयू को डिस्कस किया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसमें हमने मेमोरी यूनिट को बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था और हमने कहा था कि मेमोरी यूनिट इज़ अ टू पार्ट, रैम एंड रोम. रोम इज़ अ परमानेंट एंड रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी. तो असल में जो हमारी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है, दैट इज़ रैम. रैम क्या है या इंटरनल मेमोरी क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ चिप located on the motherboard so that data can available quickly between CPU and memory unit. जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमारा तमाम वर्क डाटा या जो भी हम काम कर रहे होते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रैम, एंड रैम इज़ आवर वर्किंग और मेन एरिया ऑफ द वर्किंग एरिया और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ये कहाँ मौजूद होती है? दैट इज़ इन और दैट इज़ ऑन मदरबोर्ड और नियर टू द CPU. क्यों ये दोनों क्लोजली होते हैं एक दूसरे के, यानी करीब ही एक दोनों प्लेस्ड होते हैं, इसकी लोकेटेड होते हैं? दैट्स द रीज़न दैट कि CPU जब प्रोसेसिंग करने लगता है तो उसको डाटा कहाँ से रिट्रीव करना है? रैम से. रैम से डाटा कहाँ आएगा? CPU में, और CPU उसको ट्रांसमिट करेगा, प्रोसेसिंग करेगा. प्रोसेसिंग करने के बाद दैट डाटा गोज़ टू द अगेन टू द रैम. सो CPU and memory unit are part of the motherboard so that data can easily travel or quickly processing between CPU and memory unit. It is temporary and volatile in nature, so it required electric current to retain data. The nature of internal memory is temporary. It's mean that कि जब आप इसमें काम कर रहे हैं तो आपका डाटा उसके अंदर सेव रहता है, लेकिन as you switch off the computer, as accidentally computer is switch off, all the data has been deleted. So it is a volatile mean temporary. It's a temporary memory unit of the computer. और internal memory की nature क्या है? टेम्परेरी है. स्टूडेंट, इसको हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं क्लास में मौजूद हूँ और मैं क्लास में आके आपको जो भी मुझे एक्सप्लेन करना है या जो भी आपको समझाना है, मैं उसके लिए किसकी मदद लूँगी? बोर्ड की. मैं वहाँ पर बोर्ड पे जो भी कुछ लिखूँगी वो आपके पास, वो मेरा क्या है? वो मेरा वर्किंग एरिया है, यानी वो मेरी रैम है और आप इसको समझ रहे हैं. जैसे ही मैं वो समझा दूँगी, मैं क्या करूँगी? उसको डिलीट कर दूँगी या मैं उसको रब कर दूँगी, या और अगर मेरा पीरियड ख़त्म होगा तो दूसरी टीचर आएगी, वो उसको डिलीट कर देगी, उसको रब कर देगी. तो सेम लाइक दैट इंटरनल मेमोरी इज़ वॉलेटाइल एंड इट्स आवर वर्किंग एरिया. वो वर्किंग एरिया उस वक्त तक आपका काम करेगा जब तक आप उसमें काम कर रहे हैं. जैसे ही आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे, दैट डाटा हैज़ बीन डिलीटेड. It is a faster form of memory because it access data directly from CPU. Internal memory और RAM is a fastest form of memory. क्यों fastest है? Because CPU access the data from RAM, and तो जब वो RAM से access करता है तो directly data is transferred to the CPU. तो it is a fastest form of memory. It can store and hold small amount of the data for a short period of time or until the computer is switch off. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि it is a volatile memory और it can hold small amount of data. जितनी आपकी रैम है, जितनी आपकी रैम की कैपेसिटी है, उतना ही डाटा स्टोर कर सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं. और जैसे ही आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे, दैट डाटा हैज़ बीन डिलीटेड. तो ये इट्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट कैन स्टोर द डाटा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल क्या है? रैम, जैसे मैंने अभी आपको बताया. इसके अलावा रजिस्टर, अब यू नो डैट कि रजिस्टर में भी डाटा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्टोर होता है. कैशी मेमोरी, 3 तरह की मेमोरीज हैं जिसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं. दैट इज़ रैम, रजिस्टर एंड कैशी मेमोरी. Another type of memory is the external memory. External memory is a physical devices connected directly to the motherboard through a communication cable. एक्सटर्नल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के इंटरनली पार्ट यानी मदरबोर्ड के पार्ट नहीं होती.
लेकिन मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि यू नो डैट कि CPU इज़ अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, और हमें चाहे वो इंटरनल मेमोरी हो या एक्सटर्नल मेमोरी हो, CPU कैन रिट्रीव द डाटा और सेव द डाटा इन बोथ मेमोरीज। तो ये कहाँ उससे कनेक्टेड होती हैं? थ्रू अ कम्युनिकेशन केबल। It is a permanent and non-volatile in nature and can store data even the computer is switch off. मैंने जब आपको इंटरनल मेमोरी बताया था तो मैंने कहा था इट्स नेचर इज़ अ टेम्परेरी और वॉलेटाइल, बट एक्सटर्नल मेमोरी इज़ परमानेंट एंड नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। तो अगर ये परमानेंट है तो इसमें हम डाटा अपना सेव कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाता है तब भी डाटा विल बी प्रेजेंट इन दैट मेमोरी दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। तो एक्सटर्नल मेमोरी हमारे डाटा को होल्ड करके रखता है जब तक हम उसको खुद डिलीट नहीं करते। यानी अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो वो डाटा मौजूद रहेगा अनटिल वी डिलीटेड इट। हमें जब वो डाटा नहीं चाहिए हम उसको डिलीट करेंगे, देन वी कैन डिलीट इट, बट it's not required electric current to retain their data. It is the slowest form of the memory because it cannot directly process by CPU. देखिए, internal memory is the fastest memory, but the external memory is the slowest form of memory. क्यों slowest है? देखिए, slowest इस तरह है कि data has been stored on external memory. एक्सटर्नल डिवाइसेस पर जैसे हार्ड डिस्क है उसके अंदर आपका डाटा सेव है, तो हार्ड डिस्क जब CPU आपको कोई डाटा रिक्वायर्ड होगा तो तब पहले आप एक्सटर्नल डिवाइसेस से दैट डाटा मूव टू द रैम से ट्रांसफ़र होगा CPU में। तो इसमें इट्स अ स्लोएस्ट मीडिया क्यों कहा गया? क्योंकि पहले डाटा कहाँ आएगा? मेमोरी रैम में, मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी से इट ट्रांसफ़र टू द CPU से दोबारा इंटरनल मेमोरी में यानी रैम से दोबारा कहाँ सेव होगा? जाके हार्ड ड्राइव में। तो इसीलिए वी कॉल्ड इट इज़ अ स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी बिकॉज इट कैन नॉट डायरेक्टली प्रोसेस बाय द CPU। डायरेक्टली CPU से प्रोसेस नहीं हो रहा, कहाँ आ रहा है पहले डाटा? रैम में, और रैम उसको ट्रांसमिट कर रहा है CPU में। सो इट इज़ द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ द मेमोरी। इट कैन स्टोर और होल्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इवन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। अगर हमें कंप्यूटर में अगर डाटा को सेव करना है और हम चाह रहे हैं कि डाटा बहुत फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सेव रहे और हम इसको जब हमें ज़रूरत हम इसको यूज़ कर लें, तो तब हम इन एक्सटर्नल मेमोरी को यूज़ करते हैं जिसमें हम डाटा को स्टोर कर देते हैं जब हमें उसकी रिक्वायर्ड होती है। हम जैसे बहुत अरसे के बाद मुझे उस डाटा की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगी? इस डाटा को सेव करके रख दूँगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको रिट्रीव कर लूँगी। सो इट इज़ और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हम इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है और उस हार्ड डिस्क में आप बहुत ज़्यादा आप डाटा सेव कर रहे हो, तो उस डिपेंड करेगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी GB की या कितनी टेराबाइट की या कितनी उसकी कैपेसिटी है स्टोर करने की। तो अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आप सेव करना है तो उसकी हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। और हम इसको कब तक सेव कर सकते हैं? जब तक हमारा दिल चाहे और जब तक हमें उसकी ज़रूरत है। और अगर हम कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो डाटा सेव रहेगा और डिलीट नहीं होगा। एग्जाम्पल: हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD-ROM, USB, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। जितनी भी मेमोरी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर हम डाटा को सेव करते हैं डेट्स आर एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर है, आपने जितना डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव किया दैट इज़ सेव इन द हार्ड डिस्क फॉर अ परमानेंट। CD-ROM, अगर आप CD यूज़ कर रहे हैं तो आपका डाटा CD के अंदर भी सेव हो सकता है, DVD के भी सेव हो सकता है और आपको जब तक चाहें आप उसको सेव कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप आर ऑल्सो एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जी स्टूडेंट, alhamdulillah, we have completed our second chapter, computer component. So we take a short review of today's lecture, that what we have discussed in this lecture. First we discuss buses and its type. Buses कितनी हैं? Address bus, control bus and data bus. And the buses are used
to transmit the signals, data, or to the from one component of computer to another component of computer. Ports and its types. There are two ports, serial port and parallel port. Ports are the socket present at the back of the computer to use the plug-in various devices. Internal memory and external memory are the component of computer where we can store the data for a short period of time. अगर short period of time करेंगे तो that is internal memory, and if you want to save the data for a long period of time, then you use the external memory. Inshallah student, we will meet or we will take the physical classes from 15 September. तो आपका असाइनमेंट ये है कि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में जितने भी मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं उन सब को अच्छी तरह लर्न करके आएंगे और लेक्चर्स को भी, दोनों लेक्चर्स को भी सुन के आएंगे, ताकि हमारी जब क्लासेस स्टार्ट हों आफ्टर फ्रॉम 15 सितंबर तो हम जो अपने पहले और सेकंड लेक्चर है उसके बारे में डिस्कशन करें और मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूँगी। तो मेरा असाइनमेंट ये है आपके साथ कि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है उसको डिस्कस आपको अच्छी तरह सुनना है, याद करके आने हैं वो तमाम टॉपिक जो मैंने आपको दिए हैं फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में। और इंशाल्लाह जब हमारा स्कूल खुलेगा तो हम इन टॉपिक्स पर डिस्कशन भी करेंगे और मैं आपका टेस्ट भी लूँगी।